Hello everyone, this is April Silvera and welcome to my channel, My Vision Classes. In the previous video, we have studied what is nitrogen, how nitrogen is important to all living organisms, especially for plants. नाइट्रोजन से हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स बनते हैं. प्लांट्स के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए कितना यूजफुल है. यहाँ तक कि जो ग्रीन कलर प्लांट्स में दिखाई देता है, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट से बनता है, उसके लिए भी नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है. देन नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड सब इंक्रीज करता है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन हमने पढ़ा कि इसमें दो टाइप्स है. ओके, फर्स्ट वन इज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन and biological nitrogen fixation. In physical nitrogen fixation, we studied about atmospheric nitrogen fixation and industrial nitrogen fixation. In atmospheric nitrogen fixation, we all know it is a natural process and involves lightning. And industrial nitrogen fixation, it takes place with the help of catalyst, and this process is called as Haber-Bosch process. Then in biological nitrogen fixation, we have studied about free living bacteria and symbiotic bacteria. In free living, we have aerobic azotobacter, aerobic bacteria that is azotobacter, and anaerobic bacteria that is rhodospirillum. Next, in symbiotic bacteria, we have studied about rhizobium bacteria. तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. Today we are going to discuss about what is biological nitrogen fixation, important characteristics of rhizobium bacteria, steps involved in the nitrogen fixation by rhizobium bacteria in soybean plant. Then some important points to remember. We now know the unusable form of nitrogen, that is atmospheric nitrogen, is converted into ammonia by certain living organisms, and this process is called as biological nitrogen fixation. In legume plants, that is pea plant, beans, groundnuts, etc., the rhizobium bacteria carries out this process. Rhizobium एक symbiotic बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूम्स में पाया जाता है. Symbiotic यानी किसी प्लांट पार्ट के साथ जुड़ा रहता है, इनसे एसोसिएटेड रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए. इसकी खास बात यह है कि राइजोबियम एक एरोबिक बैक्टीरिया है, बट इट कैन फिक्स नाइट्रोजन ओनली इन द एनएरोबिक कंडीशन. तो ये बहुत खास बात है इसकी. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कभी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा. रीजन ये है कि राइजोबियम हैज अ एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज. हमने पढ़ा है इसके बारे में लास्ट वीडियो में. तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है उसमें मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन रहता है, एंड दिस प्रोटीन ओनली वर्क्स इन एनएरोबिक कंडीशन, that is oxygen के बिना. We will study about this further. Rhizobium fixes nitrogen by forming root nodules in the legume plant. यहाँ पर आप देख सकते हो ये मास जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, that is nothing but the root nodules. Frankia is a bacteria which fixes nitrogen in non-leguminous plant, that is अल्नस प्लांट. तो लेग्यूम्स प्लांट का तो हो गया कि राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन, बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का क्या बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया. सो दिस फ्रैंकिया बैक्टीरिया इट फिक्सेस द नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट. तो इसका एग्जांपल है एल्नस प्लांट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन सोयाबीन. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में. And important is that you make the notes so that you remember things. So now let's begin. We'll move on to the next slide. So this is the root and these are the root hair. You can see the soil particles, and in the soil you find the bacteria. Plant secretes chemoattractants, or you can say nutrients. What plants do? Plant secretes these nutrients to attract the bacteria. These nutrients are flavonoids and betaines. Please note, flavonoids and betaines. Nutrients are nothing but flavonoids and betaines. तो प्लांट क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है जिससे बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो जाता है.
जैसे ज़मीन पर कुछ मीठा अगर गिर गया हो तो कैसे चींटियाँ उस पर अटैक करती है ना, तो एक दो चींटियाँ तो नहीं आती है, ग्रुप ऑफ चींटियाँ आती है ना। तो सेम वे when these nutrients are released तो बैक्टीरिया इट गेट्स अट्रैक्टेड हियर, तो इट फॉर्म्स कॉलोनीज। बहुत सारे बैक्टीरियाज डिवाइड होने लगते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज यहाँ पर आ जाते हैं, इट फॉर्म्स अ कॉलोनीज। And then these bacteria which are divided and formed colonies, they release a factor known as nod factor. Nod factor is nothing but nodulation factor. You can see here group of bacteria surrounding the root hair and it releases a nod factor and the curling of root hair takes place. आप यहाँ पर ये हुक जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, तो ये जो बैक्टीरिया है जो डिवाइड हो चुकी हैं एंड ये नॉड्यूलेशन फैक्टर रिलीज कर चुकी है, जिसकी वजह से ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, कर्लिंग ऑफ हेयर इट इज कॉल्ड एज। सो दिस बैक्टीरियाज you can see here it attaches to the root hair and the epidermal cells. Here you can see it attaches to the root hair and epidermal cell and causes the infection. जैसे बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है फिर हमको इन्फेक्शन होता है ना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होती है, फिर इन्फेक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमको खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती है। सेम वे जब बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच हो जाता है रूट हेयर को, तो यहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, यहाँ पर उसकी ग्रोथ होने लगती है बैक्टीरिया की। दैट इज़ नथिंग बट द इन्फेक्शन थ्रेड। सो द इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, इस इन्फेक्शन थ्रेड में बैक्टीरिया रहता है। ओके, इट ग्रोज, मल्टीप्लाइज, ग्रोज एंड इट देन एंटर्स इनटू द cortex region. Here there are many layers, okay, but this infection thread enters into the cortex and the pericycle cell, and here the initiation of nodule formation takes place. So many times the question is asked, nodule formation, where it takes place? It takes place in the cortex region. So keep this in mind, the initiation of root nodule takes place in the cortex region. So as the bacteria enters into the cortex region, it changes its shape, that is it becomes into the rod shaped bacteroids. तो जैसे ही ये इन्फेक्शन थ्रेड से ये बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो ये अपना शेप बदल लेते हैं और ये रॉड शेप बैक्टीरियोइड्स बन जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट the cells in the cortex and the pericycle divides and differentiates and forms a mass, a lump like structure, okay, that are nothing but the root nodules. तो जैसे ही ये cortex के cells और pericycle के cells division and differentiation में चले जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर उनका division होता है उन cells का, तो एक mass बन जाता है, एक lump बन जाता है, that are nothing but the root nodules. So this root nodules fixes the nitrogen and gives it to the vascular strand. Vascular strand जहाँ पर xylem phloem वगैरह रहता है ना, vascular system, तो उनको दे देता है। यहाँ पर जो रूट नोड्यूल्स है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड ये नाइट्रोजन फिक्स करके वैस्कुलर स्ट्रैंड्स को दे देता है जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम रहता है, तो वहाँ से फिर ओवल और पार्ट्स ऑफ प्लांट को चला जाता है। We'll move on to the next slide. We'll see the process. Plant secretes or releases nutrients or chemoattractants like flavonoids and betaines in the soil and attract the rhizobium bacteria. जैसे कि हमने उस स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि प्लांट क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फ्लेवोनॉइड्स एंड बीटेन्स इन द सॉइल टू अट्रैक्ट द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। देन राइजोबियम बैक्टीरिया डिवाइड्स एंड फॉर्म्स कॉलोनीज नियर द रूट हेयर एंड रिलीजेस नॉड फैक्टर, दैट इज नॉड्यूलेशन फैक्टर।
तो बैक्टीरिया वहाँ पर है तो वो डिवाइड होने लगते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमने सुना कि बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है ना, अगर शक्कर या फिर कोई मीठी चीज़ अगर ज़मीन पर गिरी हो तो वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है। द सेम वे यहाँ पर क्या होता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी बैक्टीरियाज वहाँ पर आ जाती है, राइजोबियम बैक्टीरियाज बहुत सारी आ जाती है, कॉलोनीज फॉर्म होती है। तो वो कॉलोनीज से क्या होता है, वहाँ पर नॉड्यूलेशन फैक्टर रिलीज कर देती है, जिससे क्या होता है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर. It causes the curling of root hair. Then the bacteria attaches to the root hair and the epidermal cells and causes infection thread. तो जब बैक्टीरिया अटैच हो जाता है रूट हेयर से एंड एपिडर्मल सेल से, जो कि आउटर सेल्स हैं, आउटर लेयर सेल्स हैं, then it causes the infection thread. This infection thread grows and carries the bacteria to the cortex and the pericycle cells. The nodule formation is initiated in the cortex region. तो इन्फेक्शन थ्रेड क्या करता है, ग्रो करता है, जिसमें बैक्टीरिया रहता है एंड इट टेक्स द बैक्टीरिया टू द कोटेक्स रीजन एंड द पेरिसाइकल रीजन. तो कोटेक्स रीजन में ये नोडल फॉर्मेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है. Here the bacteria gets modified into rod shaped bacteroids. तो जैसे ही ये सेल्स वहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स कोटेक्स में चले जाते हैं, वो अपना शेप बदल लेते हैं और रॉड शेप बैक्टीरोइड्स बन जाते हैं. देन एज अ रिजल्ट द सेल्स द कोटेक्स in the cortex and the pericycle undergoes division and differentiation and forms mass of cells, that is nothing but root nodules. तो क्या होता है कि ये जो कोटेक्स और पेरिसाइकल के सेल्स रहते हैं वो डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और एक मास फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि मैंने वो बोला लम्प, है ना. तो दैट इज नथिंग बट अ रूट नोड्यूल. द रूट नोड्यूल फिक्सेस नाइट्रोजन एंड गिव्स इट टू द वैस्कुलर स्ट्रैंड. वैस्कुलर स्ट्रैंड्स आर नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. सो the fixed nitrogen it is given to the vascular strand and वहाँ से फिर पूरे पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स हैं, वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन. Two important biomolecules needed are enzyme nitrogenase and leg hemoglobin. तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स जो ये ओवरऑल प्रोसेस जो हमने देखा उसमें बहुत हेल्पफुल है. फर्स्ट वन इज एंजाइम नाइट्रोजिनेस. नाइट्रोजिनेस एंजाइम के बारे में हम जानते हैं, है ना, वो राइजोबियम बैक्टीरिया में रहता है, जो कि कन्वर्शन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वन इज लेग हेमोग्लोबिन. तो फर्स्ट वन नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज MOFE protein complex, that is molybdenum iron protein complex. नाइट्रोजिनेस एंजाइम में molybdenum iron protein complex है. ओके. नाइट्रोजिनेस एंजाइम acts as a catalyst during the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia. So this enzyme वर्क्स एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि कैटलिस्ट इज नथिंग बट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है कन्वर्शन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. अमोनिया इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. नाइट्रोजिनेस इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन जब रहता है तब नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता. नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखिएगा. लेग हेमोग्लोबिन. लेग स्टैंड्स फॉर लेग्यूमिनस. ओके, सो दिस इज लेग्यूमिनस हेमोग्लोबिन. इट इज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर एज इट प्रोटेक्ट्स द नाइट्रोजिनेस एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन. जैसे कि अभी हम जानते हैं कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता. ओके, नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता. तो अभी सपोज वहाँ पर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो अगर नाइट्रोजिनेस एंजाइम अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाया तो, है ना, तो उसके लिए जो हमारा ये लेग हेमोग्लोबिन है बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये क्या करता है, ऑक्सीजन को
नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पास आने नहीं देता। ओके, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से। जैसे कि आजकल हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं ना, ताकि कोई वायरस मुंह में या फिर नाक में ना चला जाए, तो मास्क क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है एंट्री, वायरस की एंट्री से, है ना। सेम वे यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये है नोड्यूल्स, है ना। ये जब नोड्यूल्स कट हुआ है, आप देख रहे हो कट किया है नोड्यूल्स को, ये तो यहाँ पर ये पिंकिश कलर है ना, पिंकिश रेडिश पिंक कलर है। तो ये रेडिश पिंक कलर क्यों है, तो ये पिंक कलर क्यों है, उसका रीज़न है लेग हेमोग्लोबिन। द नोड्यूल्स अपीयर पिंक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन। इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच इज़ पिंकिश इन कलर। तो ये भी आप याद रखो कि लेग हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि पिंकिश कलर है। दैट इज वाई द नोड्यूल्स अपीयर टू बी पिंकिश, and these are the nodules. You can see so many nodules in the leguminous plant. We'll move to the next slide. So now we will recollect what we have studied till now. Okay, हमने अभी बहुत important process study किया है, तो उसके बारे में अभी हम recollect करेंगे कि क्या पढ़ा है। Plant releases certain kind of chemoattractants that are chemoattractants और nutrients कह सकते हो, that are nothing but flavonoids and betaines, जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पर डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। देन जैसे ही डिवीजन होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज रूट हेयर के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कर्लिंग ऑफ हेयर होता है ना। नॉड फैक्टर रिलीज होता है एंड कर्लिंग ऑफ हेयर होता है। देन द एंट्री ऑफ दिस बैक्टीरिया टू द रूट हेयर। तो रूट हेयर जैसे ही ये रूट हेयर को जैसे ही ये बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं तो इन्फेक्शन क्रिएट होता है। दैट इज नथिंग बट द इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड में क्या रहता है, बैक्टीरियाज रहते हैं, है ना, इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज रहते हैं। देन दे मूव टू द cortex and the pericycle region. This bacteria moves to the cortex and the pericycle region. यहाँ पर इनिशिएशन होता है नोडुल फॉर्मेशन का, कोर्टेक्स रीजन में इनिशिएशन होता है नोडुल फॉर्मेशन का। So from here, so as they move to the cortex region, they change their shape, they become the rod shaped bacteroids, है ना। Then as a result of that, this cortex and the pericycle cells, they undergo division and differentiation. बहुत इसमें वो डिवाइड हो जाते हैं, okay, and then they form a lump is nothing but mass, okay, mass of cells, that is nothing but the root nodules बन जाते हैं। then in root nodules में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है and then it transfers to the vascular system, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो पूरे प्लांट को नाइट्रोजन या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कर देते हैं। सो नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर अबाउट द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन सोयाबीन प्लांट। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। Rhizobium is a symbiotic bacteria which can fix bacteria in an anaerobic state, that is without oxygen. Rhizobium बैक्टीरिया जो कि एक symbiotic बैक्टीरिया है, जो कि एसोसिएशन में ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, उसको हम symbiotic बैक्टीरिया बोलते हैं। तो it can fix the bacteria only in an anaerobic state, that is without oxygen. It has an enzyme nitrogenase which carries out the fixation. तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया जो कन्वर्शन होता है, उस प्रोसेस को नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट प्रोटीन्स कॉल्ड एज आयरन, प्रोटीन एंड
molybdenum protein, that is iron molybdenum protein complex. Okay, तो नाइट्रोजनस एंजाइम ये आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है. लेग हेमोग्लोबिन, लेग स्टैंड्स फॉर लेग्यूम एंड हेमोग्लोबिन. It is found in the cytoplasm of infected nodule cells at a high concentrations. तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है नोड्यूल्स का, तो वहाँ पर ये लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब उस वो हाई क्वांटिटी में वहाँ पर प्रेजेंट रहता है. फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इज टू हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल्स. सो व्हाट दिस लेग हेमोग्लोबिन डज, इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू द बैक्टीरियल सेल्स. ऑक्सीजन देता है बैक्टीरियल सेल्स को. Leg hemoglobin is also called as the oxygen scavenger because it protects the enzyme nitrogenase from the oxygen. Okay, I hope you all are clear. आपको पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो, और ये प्रोसेस कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.